کیسے اور کشمیر میں صحافیوں کے لیے اپنے فرائض سر انجام دینا مشکل تر۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ آج آزادی صحافت کا عالمی دن ہے۔ کسی بھی معاشرے میں بہتری کے لیے صحافت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تاہم آزادی رائے کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں صحافیوں کو لاحق خطرات کی وجہ سے ان کے لیے کام کرنا مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال آپ کے سچ جاننے کے حق کی راہ میں بھی ایک رکاوٹ ہے۔ آج کے خصوصی شو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کیونکہ آزاد صحافت اہم ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ ورلڈ پریس انڈیکس کے مطابق ایسے ممالک کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے جنہیں صحافیوں کے لیے محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ آمر حکومتیں صحافیوں پر مزید قدغنیں لگا رہی ہیں۔ صحافیوں سے نفرت کے نتیجے میں ان کے خلاف تشدد بھی بڑھ رہا ہے۔ 180 ممالک میں صحافتی آزادیوں پر مبنی اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا کے بیشتر ملک سرخ میں ہیں، یعنی آزادی صحافت کی صورتحال پریشان کن ہے۔ چین سمیت جو ملک سیاہ میں ہیں وہاں پر صحافتی آزادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ امریکہ جسے صحافتی اور شخصی آزادیوں کا منبع سمجھا جاتا ہے، پہلی بار صحافیوں کے لیے 5 خطرناک ترین ملکوں میں شمار کیا گیا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق امریکہ میں صحافیوں کے لیے خطرات معمول کی بات بن چکے ہیں۔ صحافتی آزادیوں کے لحاظ سے امریکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال 3 درجے نیچے آ گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ صحافیوں پر پرتشدد حملے، جن میں بدترین واقعہ جون 2018 میں واشنگٹن کے قریب واقع شہر انوپلس میں پیش ہوا، جہاں ایک نیوز روم میں حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ حملے کا ملزم کئی سالوں سے اس ادارے کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے امریکہ میں اتنی بڑی تعداد میں صحافیوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں نہیں ملی، اور نہ ہی اتنے زیادہ صحافیوں نے اس سے پہلے کبھی سیکیورٹی کی نجی کمپنیوں سے رابطہ کیا ہے۔ اس سال امریکہ میں اب تک کم از کم 10 صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، جبکہ 2017 سے اب تک 46 صحافیوں پر حملے کیے گئے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز حالات میں خرابی کے لیے صدر ٹرمپ پر بھی انگلی اٹھاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ صحافی امریکی عوام کے دشمن ہیں اور فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ امریکہ میں صحافت کا کیسا مستقبل نظر آ رہا ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں امان اظہر کی رپورٹ۔ The only people giving a platform to these hate groups is the media itself and the fake news. دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے پر نگاہ رکھنے والی تنظیمیں امریکہ میں منقسم سیاسی بیانیے اور اس کے نتیجے میں صحافیوں کے لیے بڑھتی مشکلات پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ امریکی صحافیوں کے مطابق اس گراوٹ کی ایک وجہ صدر ٹرمپ کا میڈیا مخالف بیانیہ ہے، جس کے باعث صحافتی اداروں پر عوامی بھروسے کو ٹھیس پہنچی ہے۔ کیون ہال مکلاچی ڈی سی نامی امریکی اخبارات پر مبنی گروپ سے وابستہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ ان کی رائے میں موجودہ امریکی انتظامیہ کو آزادی اظہار رائے کی تشویشناک صورتحال کا مکمل ذمہ دار تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن صدر ٹرمپ کے میڈیا مخالف لب و لہجے نے صحافیوں کے کام کو مزید مشکل ضرور بنایا ہے۔ آج ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ان معاملات کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے جنہیں زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر صحافی کے طور پر آپ کی اپنی حفاظت پہلے صرف جنگ کی کوریج کے دوران ہی مسئلہ سمجھی جاتی تھی، لیکن آج بطور صحافی آپ کو چاہے انتخابی ریلی کور کرنا ہو یا سڑک پر چلتے شخص سے رائے لینی ہو، اس بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ جم ملون وی او اے سے وابستہ سینئر صحافی ہیں اور طویل عرصے سے وائٹ ہاؤس اور قومی سلامتی کے اداروں پر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔ اگر صدر ٹرمپ کی بات کریں تو صورتحال میں قدرے شدت ضرور آئی ہے۔ انہوں نے میڈیا پر حملوں کو 2016 کی انتخابی مہم میں استعمال کیا تھا، لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ صدر ٹرمپ سے پہلے کا ہے، جیسے کہ میڈیا پر بھروسہ کم پڑنا، معلومات کی درستگی یا آیا میڈیا کو غیر جانبدار سمجھا جائے یا نہیں۔
आज ये मामलात मुनकसिब सियासी सोच के मौजूदा अमरीकी माहौल का हिस्सा बन गए These हैं। issues have actually been on the rise for actually a few decades now. डॉक्टर कोर्टनी रैड्स वाशिंगटन में कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की नुमाइंदा हैं और कहती हैं कि तशवीशनाक बात हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से सहाफ़ियों के खिलाफ रियासत मुखालिफ इल्जामात और कवानीन का इस्तेमाल है। अमेरिका मेक्सिको के मद्दे मुकाबिल आ खड़ा हुआ है, जिसे सहाफ़ियों के लिए चौथा खतरनाक मुल्क समझा जाता है। इसके साथ अगर आप सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के हालिया वाक़यात को देखें, चाहे वो एहतजाजी मुजाहिरा हो या इंतखाबी रैली या फिर सदर के ट्विटर अकाउंट से मीडिया मुखालिफ बयानात, यकीनन बाइस तशवीश है। सहाफ़ती तंजीमों के मुताबिक एक अलमिया है कि आज अमरीका में इजहार राय की आज़ादी को खतरात उन इदारों से है जिनका काम दरअसल जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ऐसे में सहाफ़ती हल्के इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि गैर जानिबदारी और हक़ाइक़ पर तवज्जो आज के सहाफ़ी के लिए पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अमान अज़हर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और अब जिक्र पाकिस्तान का, जहां सहाफ़ियों की मुश्किलात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त की फहरिस्त में 139वें नंबर से गिरकर 142 नंबर पर आ गया है। इसकी अहम वजह मखसूस रियासती इदारों की तरफ से सहाफ़ती इदारों को निशाना बनाना बताया गया है। एक मिसाल पाकिस्तान में 2018 के आम इंतखाबात की है, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ती इदारों को सेंसरशिप पर मजबूर किया गया, जबकि 2018 में कम से कम 3 सहाफ़ी अपने काम की वजह से कत्ल किए गए। मुल्क में सोशल मीडिया पर भी निगरानी सख्त हुई है। इंफॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान के वजीर आज़म की खुसूसी नुमाइंदा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पर प्रेस फ्रीडम के वो मयार लागू नहीं किए जा सकते जो दूसरों मुल्कों में अपनाए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बायस मुनफरिद चैलेंजेस दरपेश हैं। आप कहें कि कोई सहाफ़ी या पाकिस्तान के अंदर काम करने वाला मीडिया इंडस्ट्री के अंदर इंडिविजुअल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, तो मैं उसकी नफ़ी करती हूँ। उनकी खिदमात जो है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, उसके अंदर जो एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया है उसका रोल हमेशा किसी भी मुआशरे में रहती है गुंजाइश। एक है आपका बेसिक राइट, जो अब हक है कि आप खबर चलाएं, एक उसके साथ जुड़ी आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है कि उसके इम्पैक्ट्स जो हैं ओवरऑल ग्राउंड पे क्या नज़र आएंगे और उसमें उसकी कीमत किसने अदा करनी है, वो 22 करोड़ अवाम ने, आपने, हम सब ने। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल रोल जो है हम उसमें जाना चाहते हैं और पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से चंद से आपकी मुलाकात थोड़ी देर में करवाते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान में सहाफ़त और सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात का तज्ज़िया ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सहाफ़ी और मुसन्निफ रज़ा रूमी, जो खुद भी 5 साल पहले इस्लामाबाद में एक हमले में बाल बाल बचे, मगर उनका मुहाफ़िज़ दम तोड़ गया। वेलकम टू दिस शो रज़ा रूमी। शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की बात से ही शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद जो है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए सहाफ़ियों को। तो ये बताइए कि कौमी मफाद को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में क्या माजी में भी हुकूमतें जो हैं उसका इस्तेमाल नाजायज़ करती आई हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में तो सबसे जो आसान काम है ना वो ये है कि कौमी मफाद हो या कौमी सलामती हो, उसकी आड़ में आप मीडिया पे कदगने लगाएं। ये आज की बात नहीं है। देखिए, ये 70 साल से यही हो रहा है। शुरू से ही सेंसरशिप का एक हमारे यहाँ कल्चर रहा है जो कि टूटा पिछले 10-15 साल में। उसमें बेहतरी यकीनन आई। जनरल मुशर्रफ के दौर में डीरेगुलेशन हुई प्राइवेट मीडिया की। फिर हमने देखा कि मीडिया ने खुद उनके खिलाफ तहरीक में एक बड़ा रोल अदा किया और उसके बाद एक दिहाई जो है उसमें मीडिया की आज़ादियाँ कदरे इम्प्रूव की। लेकिन पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि दोबारा से एक यूँ समझिए कि अनडिक्लेयर्ड या बगैर लिखी हुई गैर ऐलान शुदा एक पॉलिसी जो है वो इस वक्त लागू है, जहाँ पर किसी के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन सब एडिटर्स और अखबारात और टीवी चैनल्स जो हैं वो सेल्फ सेंसरशिप करते हैं, ताकि उनको ये खतरा है कि कहीं उनका भी वो हाल ना हो जो कि जियो टीवी या डॉन अखबार का हुआ पिछले 1-2 साल में, कि जहां पर उनकी क्रिटिकल
होने की वजह से उनके ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गईं और जियो को तो फिर कर रजा, ये भी बताइएगा, हुकूमत ये भी कहती है कि सोशल मीडिया की आमद के बाद एक नए मीडियम के तकाज़ों को समझते हुए जिम्मेदाराना सहाफ़त के लिए ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। आपके ख्याल में क्या ये ज़रूरत भी आज़ादी सहाफ़त के लिए एक चैलेंज है? जी बिल्कुल, ये चैलेंज है। जैसे कि आपको पता है कि पीका जो है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का जो कानून मंजूर किया पिछली गवर्नमेंट ने, वो भी बहुत ही ड्रैकोनियन जिसे कहा जाता है कानून है, और उसकी शिकें जो है वो इस्तेमाल हुई हैं। लोगों को इसलिए जेल भेजा गया कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट के ऊपर कुछ लिख दिया, या भी हाल ही में बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने सऊदी प्रिंस की पाकिस्तान आमद के मौके पर अपनी डीपी जो है वो तब्दील की थी और जमाल खशोगी से यकजहती का इजहार के लिए, तो उनके खिलाफ भी जो है एक इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया गया। तो ये एक तरह से एक मैसेज होता है, रियासती जो इदारे होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ होती हैं कि भाई अगर आपने कोई ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ की तो हम इस कानून के तहत आपके खिलाफ चाराजोई करेंगे। तो सोशल मीडिया अब एक नया प्लेटफॉर्म बन गया। साबिक वज़ीर इत्तलात तो कह चुके थे कि वो सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करेंगे और उस पर पाबंदियां लगाएंगे। रजा, ये भी जरूर बताइएगा कि जब सहाफ़ी अपने काम पर कदगने लगाने वालों से जवाब मांगते हैं या जब वो तमाम अतराफ का मौक़िफ़ देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मुल्क दुश्मनी जैसे इल्ज़ामात तक का सामना करना पड़ता है। तो अक्सर औक़ात, जैसे आपने खुद भी कहा कि सेल्फ सेंसरशिप की सूरत में इसका नतीजा ये निकलता है कि सेल्फ सेंसरशिप आती है। तो ये सूरत हाल खबर पढ़ने, सुनने या देखने वाले को किस तरह मुतासिर करती है? देखिए, ये बिल्कुल करती है, क्योंकि राय आमा जो है वो इसी तरह उसको हमवार किया जाता है कि वो सहाफ़ी जो कि यूँ समझिए कि बेलाग तरीके से और गैर जानिबदाराना तरीके से रिपोर्ट करें या लिखें या कमेंट करें, उनके ऊपर आजकल 3-4 बड़े की वर्ड्स हैं, फेमस वर्ड्स हैं। एक तो पहले तो उनको कहा जाता है आप गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन हैं, या आप फॉरेन फंडेड हैं, या आप जो है वो लिफाफा हैं। लिफाफे का टर्म जो है वो अब इतना आम हो गया है कि आप अगर आप फेसबुक खोल लें या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लें, हर शख्स को लिफाफा लिफाफा कहा जाता है कि जो ज़रा हुकूमत वक्त की थोड़ी सी भी तनकीद करे। और पीटीआई गवर्नमेंट के जो में तो ये बहुत आम हो गया है ये सिलसिला कि हर दूसरा शख्स जो है सहाफ़त की इंडस्ट्री में वो लिफाफा है। मगर देखें, अभी आपने रियासती इदारों की बात की और स्टेट की बात की, मैं मीडिया मालिकान का भी यहाँ पे उनका भी एक रोल है। जो हमारा ये मीडिया इंडस्ट्री में अब इतनी तब्दीली आई है कि जो बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं, वो अब मीडिया के अंदर जो है वो मीडिया इंडस्ट्री का सबसे अहम जुज़्व बन गए हैं, और उनको इससे कोई गरज नहीं है कि जर्नलिज्म जो है वो सच्चाई पे होना चाहिए, गैर जानिबदारानी से काम नहीं लिया जा रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, तो वो लोग भी इस सेंसरशिप का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि उनको अपना बिजनेस ज्यादा अजीज है और उनको अपने मीडिया वर्कर्स का या जर्नलिज्म के उसूल अजीज नहीं है। और आखिरी बात मैं ये कहता चलूं कि इसी ज़िमन में कि एक और जो सबसे बड़ा जर्नलिज्म के खिलाफ अटैक आया है वो माशी कोलैप्स का आया है। थैंक यू सो मच रजा रूमी। हमारे पास वक्त की कमी की वजह से आप ये कहना चाह रहे थे कि जो माशी तरीके से मीडिया को जिस तरह टारगेट किया गया है वो भी एक वजह है कि मीडिया सेल्फ सेंसरशिप का शिकार होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पाकिस्तान में रवायती और सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई सेंसरशिप बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन खवातीन सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात यहाँ ख़त्म नहीं होती। सिंफ की बुनियाद पर तशद्दुद, हरासमेंट, तरक्की के कम मौके और मर्दों के मुकाबले में कम तनख्वाहें ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तान की खवातीन सहाफ़ियों की छोटी मगर पुरजोश कम्युनिटी को दरपेश हैं। इन्हीं में से कुछ बाहिम्मत खवातीन सहाफ़ियों से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कराची से सिद्रा डार की इस रिपोर्ट में। 21 नवंबर 2012 को होने वाले इस बम धमाके में किरण खान दौरान रिपोर्टिंग जख्मी हो गई थी, लेकिन उनका सहाफ़ती सफ़र यहाँ रुका नहीं। मैं वहाँ पे फ़ोन पे बात करी थी लाहौर से, अचानक से धमाका हुआ है और उसके बाद जब मैं फेंट हुई हूँ और फिर मेरी आँख जो है वो आगा खान में खुली थी। डांट के मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि बस कर दो, बस बहुत हो गया, शौक पूरा हो गया, आ जाओ वापस। मैंने कहा कि आप अपनी बेटी को इतना कमज़ोर समझते हैं क्या? उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। किरण खान इस वक्त एक निजी न्यूज़ चैनल में ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं।
फ्रेंडली कॉल्स भी आती थी, फ्रेंडली थ्रेटनिंग कॉल्स जिन्हें हम कहते हैं, उसका प्रेशर भी बर्दाश्त करना पड़ता था। फिर फैमिली का भी एक प्रेशर होता था कि भाई आप इतनी ऐसी बीट क्यों कर रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन का भी एक प्रेशर होता था कि हमें हर खबर प्रॉपर वक्त पर जो है वो ब्रेक भी करनी है और सेफ साइड भी रखनी है। आपकी असल विल पावर, आपका असल पैशन उसी वक्त आता है जब आप ऐसे हालात में जो है ना कंटिन्यूएशन की तरफ जाएं। रोशनियों का शहर और पाकिस्तान का माशी हब कराची। इकरा बेग ने करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल बीट पर काम करने की ख्वाहिश के साथ 2011 में सहाफत में कदम रखा, लेकिन आज वो कल्चर और इंटरटेनमेंट की बीट पर काम कर रही हैं। मुझे सैलरी नहीं दी जाती थी। आप अच्छे पहन के आए, कपड़े अच्छा मेकअप करके आए, प्रेजेंटेबल लुक हो तो शायद आपको कोई ना कोई जगह मिल जाए। हालांकि मेरे पास डिग्री भी थी। आपको तो गोल्ड मेडल मिला है। मानिया शकील का सहाफत में सफर अभी शुरू हुआ है। उन्हें ये महसूस होता है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो इदारों में इस तासुर को रद्द करना है कि खवातीन संजीदा सहाफी नहीं हो सकती। किसी भी प्रोफेशन में रहने वाली खवातीन को पहले खातून समझा जाता है, उसके बाद उसे उस प्रोफेशन के लिए समझा जाता है कि अच्छा भाई ये सहाफी भी जो बन सकती है, ये सहाफत भी कर सकती है, ये धूप में रोड पे भाग भी सकती है, ये जब बॉम्ब ब्लास्ट हो तो साइड में खड़े होकर लाइव भी कर सकती हैं। उनको पहले यकीन दहानी करवानी पड़ती है कि मैं भी शायद इतनी मजबूत हूँ। पाकिस्तान की सहाफत हमेशा से खवातीन के लिए एक मुश्किल शोबा रहा है, लेकिन अपनी हिम्मत, लगन, हौसले और जद्दोजहद के जरिए जिन खवातीन ने अपनी मंजिल को पाया, उन्होंने नए आने वालों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। अब चलते हैं भारत, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस बार भी नीचे गिरा है। 2018 में 7 सहाफियों को कत्ल किया गया और 2019 के इंतखाबात के करीब आते ही वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के हामियों की जानिब से सहाफियों पर हमले बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर भी इन सहाफियों के खिलाफ कैंपेन्स में इजाफा हुआ है जो हिंदू कौम परस्तों पर सवाल उठाते हैं, और खवातीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर ये हमले और भी खतरनाक नौयत के हैं। और गुज़िश्ता साल ही भारत में खवातीन सहाफियों ने हरासमेंट से भी पर्दा उठाया मी टू मूवमेंट के सिलसिले में। प्रेस की आज़ादी पर हमला तो एक मसला है ही, लेकिन पुलवामा हमले के बाद भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग ने उसकी क्रेडिबिलिटी पर एक और सवालिया निशान लगा दिया है। पहले सिर्फ छोटे मकामी चैनल्स पर जानिबदार होने के इल्ज़ाम लगते थे, लेकिन अब कौमी सतह के चैनल्स या मीडिया हाउसेस भी हुकूमत का साथ देने के इल्ज़ामात में घिरे हैं। दिल्ली से VOA रुतल जोशी ने ये जानने की कोशिश की है कि भारतीय मीडिया किस तरफ जा रहा है। भारतीय टीवी चैनल्स पर ये इल्जाम आम हो गया है कि उनमें उठने वाला शोर अब खबरों का नहीं, हुकूमत की हिमायत का होता है। आज की तारीख में कोई देश के प्रधानमंत्री से एक कड़वे सवाल नहीं पूछ सकता है, एक कठिन सवाल नहीं कर सकता है। सारी के सारी कोशिश ये होती, खासतौर से टीवी चैनल्स की, कि कैसे विपक्ष को कैसे डिमोनाइज किया जाए और हिंदुस्तान की सारी दिक्कतों के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया जाए और माना जाए कि देश के प्रधानमंत्री से बेहतर कोई नहीं। भारत में अखबार और टीवी चैनल्स दोनों की आमदनी का बड़ा जरिया उन्हें मिलने वाले इश्तिहार हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद कॉर्पोरेट और सरकारी इश्तिहारों की होती है। जब एडवर्टाइजर्स और कंपनीज को पता चल जाता है कि ये प्रो गवर्नमेंट हैं, तो उनकी प्रेफरेंस है कि उन्हीं चैनल्स को इश्तिहार दें, और जो चैनल्स न्यूट्रल है उनकी बारे में 2-3 बार सोचेंगे, और जो खिलाफ है उनको तो मिलेगा नहीं। मीडिया पर हुकूमतों की नजर हमेशा से रही है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि मौजूदा दौर में निगरानी पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। मीडिया खुद भयातुर है कि अगर मैंने जरा सा कुछ कह दिया तो मेरी तो नौकरी गई और लोगों की नौकरियां गई हैं। अगर मान लीजिए हमने एक को हटा दिया एक काम पे एक वजह से, तो सबके कान खड़े हो गए, तो सब और ज्यादा झुक गए। भारत में गुज़िश्ता 5-6 सालों के दौरान दाएं बाजू की सोच काफी बढ़ी है और कई मीडिया हाउसेस इसकी अक्कासी करते नजर आते हैं। अगरचे ऐसा कोई भी चैनल वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने को तैयार नहीं हुआ। माहिरीन मानते हैं इन चैनल्स की बढ़ती मकबूलियत ने इनकी आवाज और बुलंद कर दी है। ये राइट ऑफ द सेंटर मीडिया आया हुआ है, ये तथ्यों के साथ खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ाता है, खुलेआम उसके साथ बदतमीजी करता है, और ये अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को बेशर्मी की हद तक प्रमोट करने का काम करते हैं।
روایتی میڈیا سے ہٹ کر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر شروع ہونے والے کئی نیوز پورٹلز ایک متبادل آواز پیش کرنے کی کوشش ضرور کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی پہنچ اخبار اور ٹی وی کے مقابلے ابھی بہت کم ہے۔ سن 75 میں ایمرجنسی کے دوران بھی میڈیا کی آزادی کو لے کر تمام سوال اٹھائے گئے اور وہ بڑی بحث کا مدعا بھی بنی، لیکن آج کے دور میں میڈیا کے حالات پر سیاستدانوں سے لے کر عوام تک میں ایک بے رخی نظر آتی ہے۔ یہ بے رخی جمہوریت کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اپنے وجود کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔ اور اگر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی بات کریں تو وہاں تقریباً 30 سال سے جاری شورش کے دوران صحافیوں پر حکومت اور علیحدگی پسندوں دونوں کی طرف سے دباؤ ہے۔ ایسے میں وہ اپنا فرض کس حد تک نبھا پاتے ہیں، اس بارے میں دیکھتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ۔ جون 2018 میں سرکردہ صحافی اور انگریزی روزنامہ رائزنگ کشمیر کے مدیر سید شجاعت بخاری کے قتل نے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں کام کرنے والے صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے دوسرے کارکنوں میں خوف و ہراس کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ انہیں یہ احساس بھی ہوا کہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال میں بہتری کے سرکاری دعووں کے باوجود وہ ایک ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جو ان کے لیے خطرات سے پر ہے۔ اوورآل آپ دیکھیں تو پچھلے ان لگ بھگ 30 سالوں میں کشمیری صحافیوں نے بہت کچھ جوجا ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی مارے گئے، لیکن ایک چیز ہے جو میں بڑے فخر سے کہوں گا کہ کشمیری صحافیوں نے اتنا کچھ جوجنے کے باوجود بھی اپنے قلم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ شجاعت بخاری 18ویں صحافی تھے جو ریاست میں 3 دہائیوں سے جاری تشدد کی نظر ہو گئے۔ وادی میں کام کرنے والے صحافی قتل کی دھمکیوں، غیر اعلانیہ سینسرشپ، سرکاری اشتہارات کی بندش، قید و بند اور مار پیٹ کا سامنا کرتے ہیں، لیکن خطرہ صرف سرکار یا سیکیورٹی اداروں سے نہیں۔ کبھی کبھی تو یہاں جو لوگ بھی ہیں جب ہم کور کرنے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے پر برس جاتے ہیں اور وہ بھی بہت وائلنٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہم پہ حملہ کر ڈالتے ہیں۔ فوٹو اتنا قیمتی نہیں ہے، انسان جب کسی جگہ بھی شوٹ کرنے جائے، فوٹوگرافر ہو یا ویڈیوگرافرس ہو، ان سے یہی میری گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ بھی جائے ان کو یہ سوچنا چاہیے جو بھی یہ فوٹو یا یہ میں شوٹ کر رہا ہوں یہ میری زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے صحافیوں کو سرگرم عسکریت پسندوں اور استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی تنظیموں کی طرف سے بھی زیادہ سے زیادہ کوریج کے لیے دباؤ کا سامنا رہتا ہے۔ دوسری جانب حکومت کی شکایت ہے کہ مقامی ذرائع ابلاغ اس کی طرف سے جاری عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کو بڑی حد تک نظر انداز کرتے ہیں۔ محکمہ اطلاعات کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کو حکومت کی طرف سے اشتہارات کی مناسب فراہمی ہو۔ وہیں پہ ہم اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے لوگوں پر یہ باور کرتے ہیں کہ وہ بھی محکمہ سرکار اور محکموں کی جو عوام دوست پالیسیاں ہیں اور پروگرام ہیں ان کی ایک بہتر تشہیر کریں۔ میڈیا ناقدین کے مطابق بھارت میں قومی سطح پر کشمیر کی خبروں کو نہ ہی مناسب جگہ دی جاتی ہے اور نہ ہی اس علاقے کے مسائل کو جامع انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے میں وادی میں رہنے والے مقامی میڈیا کو اپنی آواز آگے پہنچانے کے ایک اہم راستے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صحافیوں کو ایک اچھا ماحول ملنا چاہیے، فری سپیس ملنی چاہیے تاکہ اپنی فریڈم کا بھرپور استعمال کرے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ رائے رکھنا آپ کا حق ہے، سچ جاننا آپ کا حق ہے، اسی طرح سوال پوچھنا صحافی کا۔ اور جب ریاستی یا غیر ریاستی عناصر سچ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ صرف آپ سے آپ کا بنیادی حق ہی نہیں چھین رہے بلکہ وہ آپ کی سوچ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کو روکنے کے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔ ہیو اے گریٹ ویکینڈ۔